Good morning, dear students. I am Mahesh Das Mahant, your English teacher. Today we will study English chapter 7, A Fair Play. Okay? So listen carefully. Pay attention to my every words. Okay? Fair play. Okay? Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, on the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Dear students, जुम्मन शेख तथा अलगू चौधरी दोनों अच्छे मित्र थे। उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतना मजबूत था कि जब एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। दोनों का गांव में बहुत ही रेस्पेक्ट था। ओके। जुम्मन had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit. Dear students, जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिसका अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी। इस जो कि एक लैंड भूमि थी, इस लैंड को उसने इस समझौते पर जुम्मन के नाम लैंड को ट्रांसफ़र कर दी कि वह जुम्मन के साथ रहेगी तथा उसकी देखरेख जुम्मन करेगा। यह अरेंजमेंट 2 वर्षों तक सही चला, फिर कंडीशन बदल गई। जुम्मन और उसके रिलेटिव्स फैमिली वाले इस ओल्ड आंट को उससे तंग आ गए थे। जुम्मन अपनी आंट से उतना ही इंडिफरेंट विमुख हो गया, उदासीन हो गया जितना कि उसकी वाइफ। उस ओल्ड आंट की जो डेली भोजन देने में उनकी आनाकानी करने लगी, उनकी आंट यह अपमान उसको सहन नहीं हुआ, तो अपने भोजन के साथ कुछ माह तक निगलती रही, सहती रही। पर एक दिन पैसेंस का भी एक लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है। One day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen.
एक दिन ओल्ड आंट ने जुम्मन से बोला, सन, अब यह स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है, ओबियस हो गया है कि मैं तुम्हारे हाउस में अनवांटेड बर्डन बन गई हूँ। प्लीज़ मुझे मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता दे दिया करो, सो दैट मैं अपनी रसोई, अपना किचन अलग बना लिया करूँ। My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry, and she decided to take her case to the village panchayat. Dear friends, मेरी वाइफ को यह जानकारी है कि घर का संचालन कैसे किया जाता है। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जुम्मन ने सेमलेसली, बेशर्मी से आंसर दिया। यह सुनकर आंट एनॉय हो गई, नाराज हो गई। उसने अपना मामला, अपना केस गांव के पंचायत में ले जाने का डिसीजन लिया। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair, pleaded the old lady. Come to the truth, come panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. Dear friends, कई दिनों तक बूढ़ी महिला विलेज वालों के पास अपना दुखड़ा रोती रही। अपनी कंडीशन उसने स्पष्ट की तथा उनके सपोर्ट की मांग की, डिमांड की। कुछ ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, कुछ ने उसकी हंसी उड़ाई तथा कुछ लोग उन्होंने सलाह दी कि अपने भतीजे, अपने उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लो। अंत में वह अलगू चौधरी के पास गई तथा फरियाद की कि तुम तो जानते हो। तो तब अलगू बोला कि तुम तो जानती हो चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं भला उसके विरुद्ध किस प्रकार जा सकता हूँ। अलगू बोला, पर यह क्या उचित या क्या सही है कि तुम चुप बैठे रहो और सही बात न बोलो। वृद्ध ने तर्क दिया, पंचायत में जाओ तथा सच बोल दो, उसने कहा। अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर ओल्ड के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। Part second. The panchayat was held the same evening under an banyan tree. Jumman stood up and said, the voice of the words is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch
I will abide by her decision. पंचायत उसी शाम को एक पुराने बनेन ट्री के नीचे बुलाई गई। जुम्मन ने खड़े होकर अपनी बात कही तथा बोला, पंच का डिसीजन परमात्मा की आवाज़ होती है। मेरी आंट, मेरी चाची जिसे चाहे अपना सरपंच नॉमिनेट कर ले, मैं उनका निर्णय मान लूँगा। The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. पंच किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है। अलगू चौधरी के नाम पर तुम्हें कोई एतराज है? वृद्ध महिला ने घोषणा की। फाइन, replied Jumman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. ठीक है, जुम्मन ने इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। चाची, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. चाची, तुम जुम्मन तथा मेरी मैत्री की बात जानती हो। मैं वहाँ अलगू बोला। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case. चाची बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम अपनी मित्रता के लिए आत्मा का हनन नहीं करोगे। पंच के दिल में परमात्मा का वास होता है और उसकी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। और वृद्ध महिला ने उस आंट ने अपना केस स्पष्ट किया। जुम्मन said, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। तुम्हारी चाची ने मुझे उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम हो। अब मैं पंच के पद पर आसीन हूँ। तुम और तुम्हारी चाची मेरी दृष्टि में एक समान है। तुम्हें अपने बचाव पक्ष में क्या कहना है? 3 years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That all I have to say. 3 years ago, 3 साल पूर्व जुम्मन ने बात शुरू की कि मेरी चाची ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम में ट्रांसफ़र कर दी। मैंने वचन दिया कि उसे आजीवन सहारा दूंगा। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। उसकी
उसकी मेरी पत्नी से एक दो बार झड़प हो गई हुई। मैं उसे इतना रोक नहीं सका। अब मेरी चाची मासिक भत्ता मुझसे मांग रही है। यह संभव नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना है। Okay, dear students, next explanation we see next video. Thank you. Have a nice day.